Hello everybody, now again welcome in video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is sustainable consumption. अर्थात मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ सतत उपभोग के बारे में। जनरली सामान्यतः व्यक्ति या समाज में रहने वाले लोग अपने जीवन यापन को सही तरीके से एवं सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए समाज में और इस पृथ्वी पर अपने जीवन यापन को पूरे व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए या संपन्न करने के लिए कह सकते हैं कि बहुत तरह की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। संस्कृति, समाज की कुछ विरासत, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो उसको हम लोग मुख्य रूप से उपभोग की वस्तु मानते हैं। बट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स सस्टेनेबल कंजम्पशन, दैट मीन्स those types of things related to the compulsory materials of the living being. That means they are generally used in the growth and development of his or her life. तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। साथ ही साथ वो कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की भी कौन सी चीज़ें हैं जिसका उपभोग होता है फिर दोबारा उसका निर्माण होता है, उसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। साथ ही यूनाइटेड नेशन क्या कहता है उसके बारे में भी जानना समझना अति आवश्यक है। यह पूरा टॉपिक बीएड सेमेस्टर 4 के अंतर्गत आपके जो ऑप्शनल पेपर है इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन उसके अंतर्गत आता है और यह यूनिट 2 में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class, paper 13, optional paper, issues of conservation and environmental regeneration. Now the topic is sustainable consumption. First I will describe in English. Under the sustainable consumption, following points, that is consumption, sustainable consumption, impact of sustainable consumption, factors of sustainable development as well as sustainable consumption, such as examples of sustainable development and consumption, need sustainable consumption. First I will clarify consumption. As you know that consumption, that is refers not only to individual and households but also to governments, business and other institutions. Now sustainable consumption, if I will describe or focuses sustainable consumption, it is closely related to sustainable production and sustainable lifestyles. A sustainable lifestyle minimizes ecological impacts while enabling a flourishing life for individuals, households, communities and beyond. It is the full stop. It is the product of individuals and collective decision about aspirations and about satisfying needs and adopting practices which are in turn conditioned, facilitated and by societal norms, political institutions, public policies, infrastructures, market and culture, full stop. Now impact of sustainable consumption, it is most important and vital. First point, sustainable consumption is the use of material products, energy and immaterial services in such a way that it minimizes the impact on the environment so that human needs can be met not only in the present but also for future generation. Next point, sustainable consumption then
would also include analysis of efficiency, infrastructure, and waste, as well as access to basic services, green and decent jobs, and a better quality of life for all. Full stop. Next point. It shares a number of common features with and is close likely to the terms sustainable production and sustainable development. Next point, sustainable consumption as part of sustainable development is a prerequisite in the worldwide struggle against sustainability challenges such as climate change, resource depletion, or environmental pollution. Next point, sustainable consumption or production is about doing more and better with less. It is also about decoupling economic growth from environmental degradation, increasing resource efficiency, and promoting sustainable lifestyles. Next point, we are currently consuming more resources than ever, exceeding the planet's capacity for generation. In the meantime, waste and pollution grows and gap between rich and poor is widening. Health, education, equity and empowerment are all adversely affected. Next point, sustainable consumption and production can contribute substantially to poverty and transition towards low carbon and green economies. To this, sustainable consumption and production requires building cooperation among many different stakeholders as well as across sector in all countries. Now, next and the most important point, factors of sustainable development as well as sustainable consumption, such as number 1, effective use of resources and minimization of waste and pollution. Next point, use of renewable resources within their capacity for renewable. Next, product life cycle. Next point, intergenerational and intragenerational equity. Next point, it is about decoupling economic growth from environmental degradation, increasing resources efficiency and promoting sustainable lifestyle. Next point, sustainable consumption and production can also contribute substantially to poverty and transition towards low carbon and green economies. Now, examples of sustainable development and consumption. As per the mode of example, that is most important, number 1 in wind energy. As you know that it is the pattern of renewable. Solar energy also, crop rotation, that means it is the most important because more and more crop has been obtained. Water efficient, and last one is green spaces. That is the 5 most important example. Now last, need of sustainable consumption. Sustainable consumption, first point, sustainable consumption key to fighting climate change. Next point, United Nations for Environment define sustainable consumption as the use of material products, energy and immaterial services in such a way that it minimizes the impact on the environment. Next point, this is crucial for order sustainable development to be achieved, and as a result United Nations has deals with sustainable consumption and production. Next point, the main goal or main needs to require consumers to rethink their individual consumption pattern and assess the environmental impact of everything that they are consuming. Next point, consumers should be making consumption choices based on how much water, energy, land and raw materials the products and services they are acquiring have used.
And last, this will mean, for instance, deciding to eat less processed food and red meat, driving and flying less, buying less clothes, toys and gadgets, and other unnecessary goods and services. That is the fact of sustainable consumption. Now unit 2 related eyes here, that means issues and conservation related some important question. All six are most important, so all of you note down. Define the term consumerism. How do the urbanization and consumerism lead to waste generation, and also discuss about its management. Second, what do you mean by genetically modified crops? Explain the usage of GM crops in food security. Third, explain the water consumption pattern in rural and urban settlement. Number 4, what do you mean by ethnobotany? Explain its role in the present day world. Number 5, explain the causes of environmental degradation and its impact on the health of people. And last one is 6, write short notes on number 1 economic growth and number 2 sustainable consumption. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट करूँ. सतत उपभोग. सर्वप्रथम उपभोग क्या है? सतत उपभोग का प्रभाव सतत विकास के साथ सतत उपभोग पर निर्भर करती है. कैसे? सतत विकास और उपभोग के उदाहरण, सतत उपभोग की जरूरत. सर्वप्रथम मैं उपभोग के बारे में थोड़ा बता दूं. उपभोग व्यक्तियों और परिवारों को ही नहीं बल्कि सरकारों, व्यापार और अन्य संस्थाओं को भी संदर्भित करता है. सतत उपभोग की अगर बात करें तो स्थायी उत्पादन और स्थायी जीवन शैली से निकटता से संबंधित है. नेक्स्ट पॉइंट में, एक स्थायी जीवन शैली व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों के लिए एक समृद्ध जीवन को सक्षम करते हुए पारिस्थितिक प्रभावों को कम करती है. यह आकांक्षाओं के बारे में, व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णयों और संतोषजनक आवश्यकताओं और प्रथाओं को अपनाने के बारे में उत्पाद है, जो बदले हुए वातानुकूलित सुविधाजनक को ध्यान रखती है. सामाजिक मानदंडों और राजनीतिक संस्थाओं, सार्वजनिक नीतियों, बुनियादी ढांचा, बाजारों और संस्कृति से भी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है या उससे जुड़ी हुई है. अब इसका मैं मुख्य रूप से प्रभाव के बारे में बताऊं. सतत उपभोग का प्रभाव. जब कहीं भी इसके प्रभाव की बात करते हैं तो भौतिक उत्पादों, ऊर्जा, साथ ही साथ उससे संबंधित सेवाओं किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, यह पर्यावरण पर प्रभाव को कम करता है ताकि मानव की ज़रूरतों को न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पूरा किया जा सके. सतत उपभोग दक्षता और उसकी ढांचा जो आकार बना हुआ है और कचरे के विश्लेषण के साथ साथ, यानी गंदगी जो फैलती है उसका विश्लेषण के साथ साथ बुनियादी सेवाओं सहित हरित और सभ्य समाज के साथ साथ सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर भी शामिल होगा. कई समान विशेषताओं के साथ साथ साझा करता है. यह स्थायी उत्पादन और सतत विकास के साथ निकटता से भी जुड़ा हुआ है. सतत विकास के हिस्से के रूप में सतत खपत स्थिरता के खिलाफ दुनिया भर में संघर्ष में एक शर्त है. जलवायु परिवर्तन, संसाधन में कमी, अकाल या पर्यावरण प्रदूषण जैसी कुछ चुनौतियां भी हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सतत उपभोग और उत्पादन कम के साथ अधिक और बेहतर करने के बारे में है. यह पर्यावरणीय गिरावट से आर्थिक विकास को कम करने और संसाधन दक्षता बढ़ाने और स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के बारे में भी है. वर्तमान में हम पीढ़ी से अधिक की क्षमता से अधिक संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं. इस बीच अपशिष्ट और प्रदूषण बढ़ता है और अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है. स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, सशक्तिकरण सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, गंभीर रूप से तथा गरीबी उन्मूलन और निम्न कार्बन तथा हरित अर्थव्यवस्थाओं के लिए हरित अर्थव्यवस्थाओं के संक्रमण में महत्वपूर्ण आधार है. ऐसा करने से खासकर सतत उपभोग और उत्पाद के कई अलग अलग हितधारकों के साथ साथ सभी देशों के क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता होती है. अब कुछ फैक्टर्स जो कि इस पर प्रभाव डालते हैं. संसाधनों का नंबर 1, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करना. दूसरा, नवीकरण के लिए उनकी क्षमता के भीतर नवीकरणीय संसाधनों को उपयोग. तीसरा, उत्पाद जीवन चक्र. चौथा, यह पर्यावरणीय गिरावट से आर्थिक विकास को कम करने में. नेक्स्ट, संसाधन दक्षता को बढ़ाने में, स्थायी जीवन शैली को बढ़ाने में. नेक्स्ट, सतत उपभोग
और उत्पाद भी गरीबी उन्मूलन और निम्न कार्बन हरित अर्थव्यवस्थाओं के लिए संक्रमण में महत्वपूर्ण है। सतत विकास के कुछ उदाहरण जो कि महत्वपूर्ण है, पहला वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फसल का चक्रीकरण, कुशल पानी और हरे स्थान ग्रीन एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका कि रीन्यू जनरली होता है। अब सतत उपभोग की जरूरत क्यों है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण भौतिक उत्पादों, ऊर्जा, सराहनीय सेवाओं के उपभोग के रूप में अस्थायी खपत को इस तरह से परिभाषित करता है कि यह पर्यावरण पर प्रभाव को कम करता है ताकि मानव की ज़रूरतों को न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पूरा किया जा सके। जलवायु परिवर्तन से नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सतत उपभोग की कुंजी है, यानी एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण टिकाऊ उत्पादों को यानी अस्थायी उत्पादों को भौतिक उत्पादों, ऊर्जा और सराहनीय सेवाओं के उपभोग के रूप में मानता है। पर्यावरण पर प्रभाव को कम करता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इसका उपयोग वर्तमान में तथा आने वाले जनरेशन के लिए भी यानी पीढ़ियों के लिए भी किया जा सके। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो भी अस्थायी उपभोग और उत्पादन से संबंधित हैं उसको लक्ष्य के आधार पर प्राप्त करने की चेष्टा की जाए। व्यक्तिगत उपभोग पर पुनर्विचार करने और उन सभी चीज़ों के पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने की भी आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को पानी, ऊर्जा, भूमि, कच्चे माल के आधार पर उपयोग विकल्प बनाना चाहिए जो कि प्राप्त कर रहे उत्पादों और सेवाओं का उपभोग करते हैं। उदाहरण के लिए प्रसंस्कृत भोजन, रेड मीट खाना, निर्णय लेना, ड्राइविंग करना, कम उड़ना, कम कपड़े खरीदना, खिलौने, गैजेट, अन्य आवश्यक अच्छी और सेवाओं के बारे में विचार करना। तो इस प्रकार से मैंने इससे संबंधित चीज़ों के बारे में स्पष्ट किया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि यूनिट 2 से संबंधित जो पढ़ा दिए गए उससे संबंधित है। उपभोक्तावाद शब्द को परिभाषित करें। शहरीकरण उपभोक्तावाद कैसे बर्बाद पीढ़ी का नेतृत्व करती है और इसके प्रबंधन के बारे में भी चर्चा करते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से आपका क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा में जीएम फसलों के उपयोग के बारे में बताएं। ग्रामीण और शहरी बस्ती में पानी की खपत के बारे में बताएं। नंबर 4, मानव जाति वनस्पति विज्ञान वनस्पतिकी से आपका क्या अभिप्राय है? वर्तमान विश्व में इसकी भूमिका बताइए। पर्यावरणीय क्षरण के कारणों और लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में बताइए। और नंबर 6, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नंबर 1, आर्थिक विकास। नंबर 2, सतत उपभोग। इस प्रकार से इसको मैंने स्पष्ट किया। तो अभी देखा आपने कि मैंने सतत उपभोग के बारे में विस्तार से बताया, इसके प्रभाव और खासकर इसकी क्यों आवश्यकता है इसके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही मैं आज आपको अभी तक जो टॉपिक इससे पढ़ाया हूँ उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिया हूँ, उसके प्रश्न के आंसर को तैयार करें और इस वीडियो को सही से देखें, वीडियो लेक्चर को सुनो, इसका नोट्स तैयार करें। यह वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही अपलोड हो आपको यथाशीघ्र मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।